known for a very sharp political analysis and on-ground reporting, and she's also the winner of the prestigious Ramnath Goenka Award for Excellence in Journalism. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Mr. KTR and Ms. Maria Shakil. Hello everyone, and this promises to be a fun session, so we can close the door and ensure that everybody is logged in this room. KTR is one of the most charming politicians that we have seen of this generation, and he is hope, if I may use that word, particularly because I come from Bihar, and in the North Belt as well, we have seen some politicians who are envisioning a different story for the country. And that is the reason why it's an honor and a privilege to speak to one of the most hopeful politicians of the country, Mr. K.T. Rama Rao. A huge round of applause for him, please. Thank you, Maria. You know, typically, sorry, if I may say so, if I may butt in, typically whenever, you know, politics is discussed or politicians are discussed, the word hopeless is used mostly, but thank you. You said hopefully, so the hopeful, thank you. Thank yes, you and Ram is traveling all the way from Hyderabad, and this is his first visit to Jaipur. तो इसलिए जयपुर में आपका स्वागत है, लेकिन सबसे पहले क्योंकि हम ये कॉन्वर्सेशन हिंदी में कोशिश करेंगे, आपकी हिंदी भी काफ़ी अच्छी है, तो आप हिंदी में कोशिश करिएगा। तो इसकी चर्चा करेंगे हम हिंदी में भी और इंग्लिश में भी कंबाइन करके बात करते हैं। How has your experience been so far in Jaipur, and why did you not travel to this part of the country? Good question. I've traveled the world extensively, but somehow missed Jaipur, and I actually have to confess, I've not even been to the northeastern part of India yet. So I think I have a bucket list. I'll be turning 50 next year. So hopefully, I was listening to Kamlesh, Sharda, and everybody in the prior session. So there is a lot of things that I think I need to do, a lot of you know, things to add to the bucket list, and maybe climb mountains and also, you know, mount some summits, etc., and also probably do a lot of tourism in places like Jaipur, Jodhpur. So unfortunately, nobody is invited. Avinash has invited me finally. You know, Mr. Khan has been a great, great host. So I'm enjoying Jaipur. Thank you guys for the hospitality. Really, thank you. We are speaking to you at a time when the Parliament session, the monsoon session, begins tomorrow, and the agenda is more or less clear because it will be about the special intensive review which is happening in Bihar, which will be winding up in the next 6 days. उस पे बहुत चर्चा हो रही है, और क्योंकि इंडिया ब्लॉक के आप पार्ट नहीं हैं और आप एनडीए के भी पार्ट नहीं हैं, आप दोनों साइड्स से इक्वल डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, तो ये एसआईआर जो है, ऑफ कोर्स बिहार की पार्टीज़ ने, महागठबंधन पार्टीज़ और जो इंडिया ब्लॉक की पार्टीज़ हैं, उन्होंने अपना व्यू क्लियर कर दिया है। क्या ये रिव्यू है या इसमें लार्जर डिज़ाइन है जैसा वो बोल रहे हैं? नहीं, मुझे तो बस यही लगता है कि हिंदुस्तान में पिछले कई सालों से, not just in the last 11 years, but even before, there's been a systematic way of disenfranchising those people that typically, you know, do not align with your affiliation or do not align with your, you know, style of politics. This is not happening for the first time. I don't think we should probably just say, jump to a conclusion that this is happening for the very first time. It has been going on in a very systematic fashion. But the bigger question is, what is the Election Commission doing? In fact, I'm meeting the Chief Election Commissioner and his team on the 29th of this month, and one of the discussion points would be SIR and how it could impact the other states and India at large, in fact. So we have some serious reservations, we have some serious concerns with respect to the way large-scale disenfranchisement is happening in our country, and this is something that's truly worrisome, because as it is very, very easy to polarize in India. As it is very, very easy to, you know, bring up that whole us versus them narrative. So now, is this SIR going to lead to more fragmentation, to more polarization, to more divisive, you know, political discourse? Is something that truly concerns us. बिहार बहुत बड़ा राज्य है। अभी तक का असेसमेंट है, क्योंकि अभी 6 दिन बचे हुए हैं, वहाँ पर असेसमेंट है कि 35 लाख
लोग हैं जिनका वोटर लिस्ट से डिलीट कर दिया गया है नाम, और बहुत सारे रीजंस भी इलेक्शन कमीशन ने दिया है। अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग डिसएनफ्रेंचाइज्ड अपने आप को फील कर रहे होते और वो इतना पॉलिटिकल राज्य है तो वो लोग तो सड़क पे होंगे, लेकिन वैसा सड़क पे आंदोलन दिख नहीं रहा। तो ये क्यों नहीं माना जाए कि ये भी नैरेटिव पॉलिटिकल पार्टीज बना रही हैं? मारिया जी, दो चीज़ें हैं, एक तो है डिसएनफ्रेंचाइजमेंट, दूसरा है डिसइल्यूजनमेंट। वोटर काफ़ी डिसइल्यूजन भी है पॉलिटिकल सिस्टम से और पॉलिटिकल पार्टीज से। अगर आपको लगता है कोई सड़क पे नहीं आ रहा है और सड़क पे नारा नहीं दे रहा है और सड़क पे आंदोलन नहीं हो रहा है तो इस वजह से वहाँ पे सब कुछ ठीक है, अगर आपको लगता है, ये भी गलत है। क्योंकि अगर आप वोटिंग परसेंटेज भी देखेंगे हिंदुस्तान में, कई बार अगर आप अर्बन पॉकेट्स देखते हो, we don't even cross 35-40 in large cities like Bombay and even Delhi for that matter, and even Hyderabad for that matter. तो मैं दोनों भी चीज़ है, अगर आपको नहीं दिखता कि आंदोलन हो रहा है इस वजह से, अगर आपको सब कुछ ठीक ठाक लगता है, ये भी गलत है। There could be a real and imminent danger in terms of large scale disenfranchisement, but maybe they are voiceless. Maybe the political parties, maybe the system that needs to actually voice the concern is not doing its job. The other view will be that महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने ये इशू रेज किया था। बहुत सारे जर्नलिस्ट की तरह मैं भी ज़मीन पर थी, मैं भी इलेक्शन मॉनिटर कर रही थी। अगर आप वहाँ पर खुद नहीं मौजूद हैं, कांग्रेस के कितने वर्कर्स ग्राउंड पर थे, वो कितना मोबिलाइज कर पाए? अगर आप वो नहीं करते हैं तो फिर इलेक्शन प्रोसेस को क्यों ब्लेम किया जाए? बिल्कुल सहमत हूँ आपसे। जहां आप जीतते हो सब कुछ ठीक ठाक लगता है, जहां आप हारते हो आप वजह ढूंढते हो कि क्यों हमारी हार हुई। मैं बस कांग्रेस के बारे में मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूंगा, बट ये ज़रूर मैं कहूँगा कि इट्स द साइन ऑफ अ सोर लूजर टू कमेंट आफ्टर इलेक्शन। इससे पहले अगर आप तैयार हो, अगर आप इफ़ यू आर फुली इक्विप्ड टू हैंडल एनी सच सिचुएशन एज इट इज़ एमर्जिंग इन बिहार, आई थिंक इट्स बेटर टू प्रीएम्प्ट। अगर आप पहले ही अगर ग्राउंड पे रह के अगर आप शिकायत करोगे, ग्राउंड पे रह के अगर आप जागरूक करोगे जनता को, तो बेहतर है। आज शायद आरजेडी वो काम करेगी, शायद उसका कुछ नतीजा निकलेगा, शायद ये कहीं और रिपीट ना हो हिंदुस्तान में। बिहार के बाहर भी अगर इलेक्शन अगर होगा, आगे तमिलनाडु का है, बंगाल का है, वहाँ पे भी होगा, फिर तेलंगाना भी होगा। तो मैं तो बस यही चाहता हूँ कि अगर दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र में, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में अगर एक भी शिकायत अगर आया कि मेरा वोट निकाल दिया और मुझे मौका नहीं दिया गया, तो उसको सीरियसली लेना पड़ेगा। इफ वी ट्रूली वांट टू बी अ डेमोक्रेसी, वी हैव टू टेक दिस each and every single complaint, even if it is not 35 lakhs like you mentioned, it could even be 5 lakhs, but even 5 lakh is a big number. So we have to remember the last election in Bihar was lost with a margin of 12,500 votes. In such a large state, an election was, the tipping factor was hardly 15,000 votes. So 5 lakh or 35 lakh or 50 lakh, whatever the number is, I think we have to take it seriously and we have to really take the issue with a lot of concern. Since the topic of this discussion has to be North-South divide, I'm going to begin with that part of this discussion now. Mr. K.T. Rama Rao, is the North versus South more of a perception problem, a manufactured debate, or is it a policy problem? Is it for real? Do leaders like you feel that North India, where you're sitting right now, has taken away all the, you earn and we spend? Firstly, what unites us is this sense of being Indian. There's no question of, the identity. अगर मैं बाहर जाता हूँ कहीं हिंदुस्तान के बाहर, तो मैं पहली बात तो मैं हूँ इंडियन, साउथ इंडियन हूँ, तेलुगु हूँ, मैं फलाना जात का हूँ, बाकी बाद में आता है। Because each and every individual has multiple identities and sub-identities. But when I come back to India, when I'm back home in Hyderabad, the fact is, why are we debating this South and North? I would say possibly because, the whole delimitation issue is hanging around. The delimitation issue is, looming large. One of the most important things for us to understand, Maria ji, and for all of us to also probably understand the perspective of a South Indian, so to speak. What is happening in India right now? See, why are we talking about delimitation? Delimitation इसलिए किया जाता है as per constitution, ताकि representation बढ़े, ताकि जनता की जितने भी मसाइल है, जितने भी समस्याएं हैं, उनका कोई हल निकाला जाए, उनका कोई परिष्कार निकाला जाए, ताकि ultimately democracy ढंग से function करे। पर हो क्या रहा है? 1971 तक हर 10 साल में सेंसस होता था,
10 साल के बाद डिलिमिटेशन होता था। जब इंडिया को आज़ादी मिली, हिंदुस्तान को आज़ादी मिली, आई थिंक इनिशियली वी स्टार्टेड विद अबाउट 430 ऑड पार्लियामेंट सीट्स। बाद में वो संख्या बढ़ी, 470 प्लस हुआ 61 में, अल्टीमेटली 71 में 543 नंबर पे हम लोग आ पहुंचे। तो 543 को फ्रीज किया गया 71 में, 543 लोकसभा सीट जो है उसको फ्रीज किया गया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये माना कि पॉपुलेशन ग्रोथ अगर एक्सप्लोसिव ऐसे ही आगे निकला तो इसको लेके बहुत समस्या हो सकती है। तो 71 में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, कहा कि 543 फ्रीज किया गया नंबर, 30 साल के बाद इसको हम फिर रिवाइज करेंगे, सेंसस तो चलेगा, संख्या नहीं बढ़ेगी, और फैमिली प्लानिंग को लागू करना शुरू किया। फैमिली प्लानिंग जब लागू किया भारत सरकार ने, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाया, हुआ ये कि साउथ इंडिया में फैमिली प्लानिंग को ढंग से अमल किया गया। इस वजह से 1948 में जब सदर्न पॉपुलेशन थी 26%, आज वो घट के 19% पे आ गया। पर नॉर्थ इंडिया में कई ज्यादा राज्यों में फैमिली प्लानिंग ढंग से नहीं हुआ, जैसे उत्तर प्रदेश एज एन एग्जांपल। उत्तर प्रदेश में 1950 से लेके आज तक 239% बढ़त हुई है पॉपुलेशन में, बट केरला में पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है 69%। अगर आप कल कहोगे डिलिमिटेशन में कि फैमिली प्लानिंग जिन्होंने ढंग से किया भारत के हित में और या भारत सरकार के आदेश अनुसार, उनको अगर आप पनिशमेंट दोगे और उनकी रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में कम करोगे, और जिन्होंने आपके आदेश को पालन नहीं किया उनको अगर ज्यादा आप इंक्रीज करके उनकी आवाज बढ़ाओगे क्योंकि पॉलिटिकली इट सूट्स यू, ये कहां तक जस्ट है, कहां तक इंसाफ है? हमारी सवाल यही है कि अगर आप संख्या बढ़ाओगे, जरूर बढ़ाइए क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, बढ़ाना चाहिए क्योंकि आबादी बढ़ी है, पर अगर आप लॉपसाइडेड करोगे, this will not just be imbalance, this is federal iniquity, this will disturb our federal structure, this will question the very basis for the foundation of our federal structure as enshrined in the constitution, and this is a very, very serious issue. That's our concern today. But it is almost being seen inevitable. There is a mobilization which is happening of southern states, and interestingly, MK Stalin has taken the lead, because the elections, of course, are in Tamil Nadu next year. So you may have to wait a little longer, because ye election issues hi ban jate hain, emotive issues ban jate hain. Then why are we not seeing that kind of collaboration in your state? Why is there no collaboration between the chief minister and someone who is like you, who's leading a political party who was in power, say, till a year ago? Let me correct you on this. In fact, both this chief minister of Telangana, who is from Congress party, and myself, both of us have actually taken the same stand in the meeting at Chennai. We have said the same thing. We said, population alone cannot be the basis for distribution of seats or delimitation. अगर delimitation की बात होती है, हमारी पार्टी की तरफ से हमारा राय ये है कि the first port of call always in a democracy is mostly MLA, not MP. अगर delimitation ही करना है तो आप MLAs का संख्या बढ़ा दीजिए। अगर political parties and representative democracy में अगर each constituency has to be equally represented, you can increase the number of MLA seats. But MPs keep them proportionate to what they are right now. For example, out of 543, 17 belong to my state, 25 belong to Andhra Pradesh, 39 belong to Tamil Nadu. Together, South India has about 130 plus seats. What we are seeking is that this be kept intact, then the proportion be kept intact. If this does not happen, if Uttar Pradesh becomes that one state that can decide the next union government in India with a lopsided number, then I think the rest of the country will feel the pinch, the rest of the country will certainly voice the concern, and more importantly, I think centralization of policy, centralization of fiscal resources also is a huge, huge challenge. Because the more, the political parties start feeling that the Hindi belt will decide who's going to be the prime minister, then the entire focus, the entire concentration would be on making policies which suit the Hindi belt, and rest of India will be left in the lurch. The union government has repeatedly said that it will be on the basis of pro rata. See, we don't trust the union government. I'll tell you why. 11 साल पहले तेलंगाना को जब एक अलग राज्य बनाना था, भारत सरकार ने एक कानून लाके, आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाके भारत सरकार ने नया राज्य बनाया, और आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को पास किया पार्लियामेंट ने। पार्लियामेंट में यह वादा किया गया था एक्ट के तहत कि डिलिमिटेशन किया जाएगा आंध्रा और तेलंगाना में और संख्या बढ़ाई जाएगी एमएलएस। 11 साल हो गया,
आज तक एक चीज भी उन्होंने नहीं किया, पर जब उनको सूट करता है, उनको जहां पॉलिटिकल फायदा पहुंचता है वहां जरूर करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में कर दिया डिलिमिटेशन, मांगा किसी ने, पूछा किसी ने नहीं। जहां आपने वादा किया, जहां आपने वादा ही नहीं बल्कि कानून बनाया, स्टैट्यूट बनाया, वहां तो आप निभाते नहीं हो। बट जहां आपको सूट करता है असम में, जहां आपको सूट करता है कश्मीर में, आप वहां पे डिलिमिटेशन करते हो और कुछ सीटें जीत जाते हो। तो इसीलिए हम भरोसा नहीं करते भारत सरकार का और खासकर भाजपा का कि उनको जहां पॉलिटिकल फायदा पहुंचता है वहां काम करते हैं, उनको जहां पॉलिटिकल फायदा नुकसान पहुंचता है तो नहीं करते हैं। तेलंगाना में तो उनका कुछ पकड़ नहीं है तो नहीं कर रहे हैं। Then delimitation should be put on hold like it was in 2003? I would say one thing, Maria. See, अगर आपको डिलिमिटेशन करना ही करना है, पहले आप बता दें सबको बिठा के, या तो पार्लियामेंट में या बाहर, हर पार्टी को बुला के आप बता दें कि क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। आप डेमोक्रेसी है, मोबोक्रेसी नहीं है ना। आप क्योंकि आपका संख्या है पार्लियामेंट में, लोकसभा में, राज्यसभा में, आप मनमानी अगर आप करोगे तो जरूर उसका एक नतीजा भी होगा, उसका कोई रिएक्शन भी होगा, आपको भुगतना पड़ेगा। तो मैं बस इतना ही कह रहा हूं, आज तक भारत सरकार ने कोई एक बैठक तक नहीं बुलाई कि डिलिमिटेशन अगर करना है तो क्यों कर रहे हैं। सेंसस कर रहे हैं अभी, सेंसस के बाद क्या करेंगे? कास्ट सेंसस की बात होती है, सेंसस के बाद डिलिमिटेशन की बात होती है, आरक्षण की बात होती है, विमेन रिजर्वेशन की बात होती है। अब किस बेसिस पे करोगे, कैसे करोगे और कैसे सबको? बार बार मोदी जी कहते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, बड़े तो कोअर्सिव फेडरलिज्म हो गया। आप कोर्स करोगे क्या? हमें जबरदस्ती करोगे कि हम जो कहेंगे बस आपको मानना पड़ेगा? आप अगर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में विश्वास रखते हो, मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप बिग ब्रदर बनो, बिग बॉस ना बनो। आप बिग ब्रदर बनोगे तो सबको बुलाओ, छोटों को, हमको सबको बुलाओ, बिठाओ, समझो, सुनो और फिर बाद में बोलो कि सबका साथ सबका विश्वास। वरना आपकी जो डायलॉग बाजी है वो तो डायलॉग ही रहेगा और अल्टीमेटली उसका तो कुछ नतीजा नहीं निकलेगा। But Mr. KTR, for last 10 years, when BRS was in power, you worked with the central government. Then at that time it was cooperative. Now it has become No, absolutely coercive not. because you're an opposition. No, let me correct you. We have worked with union government on certain things. We have opposed them on a number of things. We have always been issue based. It's not like we oppose everything that BJP says blindly because we have to oppose. No, ऐसा कुछ नहीं है। हम जब GST की कानून आई थी तो उस बिल को हमने मदद की। जब रामनाथ कोविंद जी को प्रेसिडेंट बनाने की एक प्रपोजल आई थी तो उसको सपोर्ट हमने की। पर जब आर्टिकल 370 की आई थी तो उसको हमने अपोज की। अब जब फार्म बिल्स आए थे, फार्म लेजिस्लेशन आए थे तो उसको अपोज हमने की। तो जहां इशू बेस्ड हमने एक ओपिनियन और एक हमारी स्टैंड रही है, बट वी हैव नॉट, इट्स नॉट लाइक वी आर पार्ट ऑफ NDA और इंडिया। So we've always been independent and we've never been subservient to anybody. But for 10 years, when you were the industries minister, you were dealing with the same Modi government at the center. Do you have a choice? Can I deal with any other government? वो तो भारत सरकार है, मैं एक छोटा राज्य का सरकार हूँ, तो मुझे तो फिर जाना ही पड़ेगा उनके साथ, तो काम भी करना पड़ेगा। Ultimately we are part of the larger nation. So as far as politics and economics are concerned, हमारा राय यही है कि politics को आखिरी 6 महीने तक सीमित रखना चाहिए और इकोनॉमिक्स शुड टेक सेंटर स्टेज फॉर 4.5 years और देश के हित में, राज्य के हित में हर किसी को काम करना चाहिए। कल मुझे यहाँ पे राजवर्धन सिंह राठौड़ जी मिल गए इसी इवेंट में, वो भी शामिल थे, मैं भी था, तो एक कमरे में हम लोग वी रैन इनटू ईच अदर। ही इज नाउ द मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्री एंड कॉमर्स हियर। सो आई वाज टेलिंग हिम कि क्योंकि मैं 10 साल इंडस्ट्री का मंत्री रह चुका हूँ, तो मेरा जो एक एक्सपीरियंस है, मेरे जो कुछ सजेशंस हैं, मैंने उनको पास किया। वो कह रहे थे कि मुझे 1000 और 2000 करोड़ वाले इन्वेस्टमेंट तो बात की बात है, मुझे MSME को बढ़ाना है। तो मैंने कहा भाई साहब ऐसा है कि हमारे हैदराबाद में भी काफ़ी सारे राजस्थान एक्सपैट कम्युनिटी है जिनके छोटे छोटे बिजनेस हैं जो 50 करोड़, 25 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ में ज़रूर यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। उनका मन और उनके दिल से वो राजस्थान को चाहते हैं। तो मैंने कहा उनसे कि आप आइएगा, मैं एक मीटिंग भी ऑर्गेनाइज करूंगा, आपको इंट्रोड्यूस करूंगा, तो आप राजस्थान निवेश लाने की कोशिश करिएगा। तो देश के हित में अगर मैं राजस्थान, जयपुर आके मैं ये बात कह सकता हूं और राजस्थान के यहाँ के जो बीजेपी के मंत्री हैं उनको मैं एडवाइस दे सकता हूं कि भाई साहब आप हैदराबाद आके इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करो और राजस्थानी जो है वहाँ पे उनकी निवेश यहाँ लाने की कोशिश करो। तो क्यों ना मैं मुद्दों पे मैं अगर भाजपा के साथ या कांग्रेस के साथ कभी का एक बार अगर कांधा से कांधा मिला के चलना पड़े तो क्यों ना चलूं। तो आपने कांधा मिलाकर के आगे आप चले हैं। Can I have a mic please be passed down to Kamlesh Tao here? Why are we getting Kamlesh? He's deeply No, philosophical. we are bringing him in because my next question is on Hindi imposition. Oh, okay. And you are speaking in Hindi.
ताऊ, ये जो पूरा चर्चा हो गई है कि हिंदी जबरदस्ती का थोपा जा रहा है, आपने महाराष्ट्र में देखा और अभी केटीआर जी यहाँ पर हैं, हिंदी इम्पोजिशन क्या है? वो लार्जली पॉलिटिकल है। मुझे नहीं लगता कि कोई किसी पे कोई लैंग्वेज इम्पोज कर रहा है। You're 100% right, ये sir. पूरी तरह से पॉलिटिकल है। जो भी पॉलिटिशियंस क्या करेंगे, उनका भी तो प्रोफेशन है। मैं छोड़ दूं अपना काम? ये प्रोफेशनल कंपल्जन है। नहीं, मैं आपको एक चीज कहता हूं, कमलेश जी, एक बात कहता हूं। भारत सरकार जब 50 करोड़ रुपया बजट में रखती है कि हिंदी को प्रमोट करना है पूरे भारत में, और जब एक पैसा भी नहीं देती है तेलुगु को प्रमोट करने के लिए, बांग्ला को प्रमोट करने के लिए, मैं क्या समझूं उसको? हिंदी इंपोजिशन तो नहीं कहूंगा, बट हिंदी को प्रमोट तो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं प्रमोशन हो रहा है, पर मसला वो नहीं है, समस्या वो नहीं है। मैं यहां पे बैठ के आज हिंदी में आपसे मैं एटलीस्ट आई एम ट्राइंग टू कन्वर्स इन हिंदी एज टू माय बेस्ट एबिलिटी। मुझे किसी ने जबरदस्ती की क्या कि आप हिंदी सीखो? नहीं। पर अगर कल कोई ये कहेगा कि भारत में जितने भी राज्य हैं, 28 राज्य, और हर राज्य में कल आपको, अगर आपको सीआरपीएफ में आना है या भारत को कोई किसी को आर्मी में आना है या कोई रेलवेज में काम होना है, तो आपको हिंदी में परीक्षा लिखना पड़े, तो ये तो गलत है। क्योंकि जितने भी रीजनल लैंग्वेजेस है, क्योंकि भारत का तो कोई राष्ट्रीय भाषा है नहीं। इंडिया हैज नो नेशनल लैंग्वेज। इंडिया हैज 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, 300 unofficial languages, some languages which do not even have a script. So all I'm saying is, I'm not going to enforce Telugu on you. Why are you enforcing or imposing Hindi on me? Leave it to the country, leave it to the people of this country. Why are we imposing ourselves on each other? Hindi imposition, see, for example, if Tamil Nadu feels very strongly, or Karnataka feels very strongly, or even Maharashtra feels very strongly, or Telangana feels very strongly, that Hindi should not be imposed, so be it. See, Prime Minister P.V. Narasimha Rao was able to converse in 16 languages, including French, German, and Spanish. So my point is, it is the individual's appetite, it is the individual's interest that should dictate. And also, Kamlesh ji, language is not just political issue. Language is not just a communication tool. Language is also cultural identity. Remember that. See, in fact, the beauty of India is unity in diversity. भी हम लोग बार-बार कहते रहते हैं. अगर आप हिंदी को इम्पोज करोगे, हिंदी को जबरदस्ती साउथ में या कहीं और इम्पोज करने की कोशिश करोगे, you are undermining the very idea of this diversity. You are undermining the authority of this country, which is based on our beautiful diversity. क्यों करना है जबरदस्ती किसी के साथ? तो राज ठाकरे को क्या बोलेंगे? सॉरी, राज ठाकरे को क्या बोलेंगे जो अभी हो रहा है? मैं राज ठाकरे को भी यही कहूंगा कि जैसा आप हिंदी इंपोजिशन नहीं चाहते हो, वैसे ही आप मराठी इंपोज भी ना करो. मराठी भी आप किसी के ऊपर जबरदस्ती ना इंपोज करने की कोशिश करो. आप ये क्यों कहते हो? आप ये क्यों कहते हो कि आपको मुंबई में रहने के लिए आपको मराठी बोलना पड़ेगा या हैदराबाद में रहने के लिए तेलुगु बोलना पड़ेगा? हाँ, मैं ये बात तो मैं जरूर कहूंगा कि अगर आपको मुंबई में रहना है, लोकल्स के साथ मिंगल करना है, तो सीख लो, तो 2-4 शब्द मराठी के सीख लो, तो गलत तो है नहीं. Respect the local culture, respect the local language. See, we go to Europe, we all travel to Europe, right? When we travel to Europe, you can converse in English, but if you can converse in French, the French will really appreciate it. If you can converse in Spanish, they will really appreciate it. They preserve their culture, they preserve their language, they preserve their diversity. What's wrong in India, which is a union of states, trying to preserve its cultural identity, trying to preserve its individuality, there's nothing wrong with it. यहाँ पर मैं आपसे डिफर करूंगी, क्योंकि जो बिहार के मजदूर जाते हैं महाराष्ट्र में या कहीं पर भी वो जाते हैं, सवाल तो आपको ये करना पड़ेगा क्यों जाते हैं, क्योंकि बिहार और यूपी में काम नहीं होता है. वहां पे आप वो देखिए ना, तरक्की अगर वहां लाएंगे, जो विकास की बात होती है, विकास अगर हो रहा है, तो क्यों दूसरे तरफ जा रहे हैं, दूसरे राज्यों में? लेकिन जाते हैं, अभी वो रियलिटी है, और वहां पर जाकर के उनको थप्पड़ दिया जाए कि आप मराठी नहीं बोलते हैं, ये आप इसको उनके मन से नहीं है कि वो एक तो वो घर के छोड़कर नहीं मारिया जी, मैं उसका सख्त खिलाफ हूं. मैं वही कह रहा हूं आपसे, जैसा हिंदी इंपोजिशन कोई तेलुगु नहीं चाहता या कन्नड़ा नहीं चाहता, वैसे ही आपको भी मराठी या तेलुगु किसी और पे इंपोज करने का अधिकार आपको नहीं है. मैं बस इतना ही कहूंगा, अगर कोई एक ओडिया आदमी जा रहा है कोई रूरल हिंटरलैंड महाराष्ट्र में काम करने के लिए, ना तो वो मराठी बोल पाता है, ना दूसरे तरफ से ओडिया बोल पाते हैं, तो एक माध्यम तो ढूंढना चाहिए, एक माध्यम तो होना चाहिए, या तो इंग्लिश हो या, देखिए मैं ऐसी बात है, ओटीटी में हम लोग आज अगर आप देखेंगे तेलुगु सिनेमा, आप जयपुर में भी देखते हो सबटाइटल के साथ,
और कहीं और भी देखते हो, RRR हो, बाहुबली हो, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू हैव वॉच्ड इट, बाहुबली एंड RRR। तो जब आप देखते हो या तो उसको डब करना चाहिए हिंदी में, वरना आप देखोगे सबटाइटल के साथ। कौन सबटाइटल होता है? वो अंग्रेजी होता है। मैं मलयालम सिनेमा जब देखता हूं तो अंग्रेजी सबटाइटल में देखता हूं, मैं अगर ईरानियन सिनेमा भी देख रहा हूं तो अंग्रेजी सबटाइटल में देखता हूं। तो कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए कम्युनिकेशन के लिए। भाषा एक माध्यम भी है, आइडेंटिटी भी है, पर जब माध्यम जब नहीं रहता और आइडेंटिटी की जब बात बनती है तब जाके पॉलिटिकल लड़ाई शुरू हो जाती है। जब जिस हद तक अगर माध्यम ही रहता है, जस्ट अ मीन ऑफ टूल ऑफ कम्युनिकेशन, then there is no issue. That is the challenge. All I would say is, if you're going to Maharashtra or Karnataka or Telangana or Tamil Nadu, try and learn a few pieces, few lines at least, so that you respect the locals. अगर आप जाओगे और आप हिंदी में ही बात करोगे और आपको कोई और भाषा आती नहीं है, तो उनका तो समस्या नहीं ना वो। नहीं, लेकिन वो डिसरिस्पेक्ट तो नहीं हुआ। अगर हम अपना घर छोड़ करके आकर के आपके यहाँ बिल्डिंग बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, तो हम तो आपकी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं मैं ना। आपको यस बिल्कुल, मैं तो मानता हूं कि all the migrant workers are partners of our state development. There's no question. In fact, our chief minister in 2020, Sri KCR, had mentioned this word, that you are partners of my state development, and he is the only chief minister in India who had organized special trains free of cost, 500 रुपया हर किसी को दिया, खाना दिया और उनको ढंग से मर्यादा के साथ वापस उनके राज को भेजा। पर मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, जब हमारे बच्चे जाते हैं पढ़ने यूके और यूएस, आप क्या कहोगे? वहां पे अंग्रेजी नहीं सीखना है उनको, अंग्रेजी सीखना पड़ेगा, वहां की लोकल कल्चर को समझना पड़ेगा, उस हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर आपके बच्चे कोई जाते हैं रशिया मेडिसिन पढ़ने या फिलीपीन जाते हैं, तो क्या कौन सी भाषा में उनकी आज ट्रेनिंग होती है? रशिया में होती है, रशियन में होती है। हमारे बच्चे जो चीन जाते हैं, वहां पढ़ाई करते हैं, चीन में मैंडरीन सीख के आज वहां पे मेडिसिन पढ़ते हैं, रशियन में पढ़ते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी को तेलुगु सीखना पड़ेगा या तमिल सीखना पड़ेगा या कोई और सीखना पड़ेगा, पर क्या तकलीफ है आपको दो चार अगर लाइन, जैसे मैं हिंदी सीखा हूं, मेरी नेटिव तेलुगु है, मदर टंग मेरी तेलुगु है, पर मैं हिंदी सीख के आपसे बात कर सकता हूं। आप क्यों नहीं कोशिश करोगे 4 लाइन तेलुगु सीखने की, अगर तेलंगाना में रहना है? क्या गलत है उसमें? तो अगर कोई नौकरी ढूंढने जा रहा है, वो एक पर्टिकुलर लेवल पर है, क्लास है, तो वो सीखने की उनकी ख्वाहिश होगी तो वो सीख लेंगे, लेकिन इस तरह की जबरदस्ती करना सही है? 100% लॉ गलत एंड है, ऑर्डर का सिचुएशन बनाना सही है? 100% गलत है, मैं उसका सख्त मुखालिफत कर रहा हूं, और 100% रॉन्ग है, ये भी कह रहा हूं। कानून को लागू होना चाहिए, एंड whoever indulges in this kind of petty politics is wrong. Okay, let's move on then with that consensus. Among the politicians from the north of India, who do you see as the bright spot? I'm friends with Akhilesh Yadav ji, so I like him. I like his politics. Many of you may not like him, but that's a different story. But I'm not. See, I like Conrad Sangma, who's the Chief Minister of Meghalaya. He's a dear friend also. So obviously, since I'm friends with them, I'm biased. I like both of them. I also know Tejasvi reasonably well, so I like him as well. And I don't know. Tejasvi Surya. No, Tejasvi Yadav. Okay. And by the way, Tejasvi Surya is from south of India. Yes. So among the south of India politicians, who do you see as the bright spot? A bright spot in south of India, so I would say probably Shashi Tharoor ठीक ठाक है, but आजकल थोड़ा उनकी पॉलिटिक्स गड़बड़ा रही है, बट शशि थरूर ठीक ठाक है। क्या पॉलिटिक्स गड़बड़ा रही है? अब ये मैं शशि थरूर, फिर यार आप लोग सोशल मीडिया में चल जाएगा, फिर शशि मुझे फोन करेंगे। मैं बस इतना ही कहूंगा, ज्यादा नहीं कहूंगा। Looks like there is some saffronization happening, so that's what I was commenting on. No, but if he is speaking about nationalism, how is that saffronization? If he is the ambassador leading a delegation, shouldn't he be putting India interest first when he is speaking on a platform outside India? Remember, he's also part of India Bloc, no? So, India Bloc या India या NDA, वो थोड़ा कुछ गड़बड़ है। मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, कुछ गड़बड़ तो है। Okay, so you'll be mincing your words. I will be mincing my words on Shashi because Shashi has a lot more words in his vocabulary than me, so I'll be careful. So now I'll open the floor for questions, and if the mic can be moved around. Yes. सर, वैश्विक स्तर पर कई देशों की अपनी राष्ट्रभाषा है, तो आपको लगता नहीं कि एक संपर्क भाषा के रूप में हमारे भारत की भी एक राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए? नहीं, कोई जरूरत नहीं। क्यों? इंडिया ठीक ठाक चल रहा है, 78 years, आपको बदलने की क्या जरूरत है उसको? Why do we need a national language when we
have done very well for ourselves for the last 78 years. अगर आप मैं प्रपोज करूं कि तेलुगु बना दो नेशनल लैंग्वेज, आप मानोगे? नहीं ना. इंडिया इज अ डेमोक्रेसी ब्रदर, नॉट अ मोबोक्रेसी. क्योंकि संख्या ज्यादा है, मैं इसलिए जबरदस्ती इंपोज करूंगा बाकियों पे, ये नहीं चलेगा. चलिए. Yes. Sir, South India has opposed the language imposition very thoroughly, right? And that is well and good. But that same thing happened during the independence era in 1947 with Purvanchal and Bihar and regions like that, where subliminally these languages were sort of treated like they are spoken by rural class, second-class citizens. So why is it? Is it just like cultural divide between North and South, or there is something else entirely in that? See, India is a beautiful country. Everything in India changes every 250 kilometers. If you travel the length and breadth of India, the language, the culture, the dialect, the eating habits, the cuisine, everything changes in 200 to 250 kilometers. The beauty is, see, if you travel Europe and if you travel India, you'll see a lot of similarities. कि हम इतने डाइवर्सिटी के साथ भी इतना कुछ हमको अलग करते हुए भी, कास्ट हैं, क्लास हैं, लैंग्वेज हैं, इतने बैरियर्स हैं, इस सब के बावजूद वी आर टुगेदर. एंड 78 years post independence, we are sitting here in Jaipur talking to each other in a very civil discourse. That's the beauty of democracy. इसको बदलने की या इसको कुछ करने की, इसके साथ एक्सपेरिमेंट करने की कोई ज़रूरत मुझे तो नहीं लगता. पहली बात. दूसरी बात, जो हुआ 40s में 50s में, उसका जानकारी मेरे पास ज़्यादा नहीं है, बट ये तो ज़रूर कहूँगा, ड्यूरिंग एवोल्यूशन, एज पार्ट ऑफ एवोल्यूशन, some languages do disappear. Some languages which do not have a script, for example, कई सारे languages ऐसे हैं जिनका कोई script नहीं है, कहीं लिखा हुआ नहीं है, but by word of mouth they get disseminated. शायद ऐसा कुछ हुआ होगा जहां people have started possibly communicating less and have started switching to something else, and therefore they have lost their sheen and glory and eventually disappeared. I think that's possibly the answer. हेलो. Hi. सर, आप कम्युनिकेशन एक लैंग्वेज की बात करते हैं जिसमें आपने कहा कि मैं इंग्लिश के सबटाइटल देखता हूं, और इंडिया की कोई कम्युनिकेटिव लैंग्वेज क्यों नहीं होनी चाहिए? जैसे कि आजकल है, हिंदी है, आप भी बात कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, इवन साउथ के ज़्यादातर लोग कर रहे हैं, और यहाँ के स्थानीय लोग भी काफ़ी हिंदी की पकड़ रखते हैं. तो आप क्यों नहीं हिंदी को ऐसे कहें कि ये कम्युनिकेशन की लैंग्वेज हो सकती है? इसमें क्या है? और फिर आप एग्जाम्पल देते हैं कि कोई कह रहा है कि ये लैंग्वेज हिंदी का हो, आप दूसरे कंट्री का एग्जाम्पल देते हैं कि वहाँ इंग्लिश सीखनी पड़ती है, वो सीखनी पड़ती है, फिर उसका आप यहाँ का एक एग्जाम्पल बना के देते हैं कि क्यों नहीं सीखनी चाहिए. तो ऐसे अजीब एग्जाम्पल क्यों देते हो सर? क्यों ये सिमिलर चीज़ें क्यों नहीं? क्यों? मैं बस आपसे इतना ही कहूँगा, जैसे आप अगर कहोगे कि हिंदी राष्ट्रीय भाषा होना चाहिए, मैं अगर प्रपोज करूं, नहीं सेम चीज, मैं अगर प्रपोज करूं कि कोई और भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाया जाए, सॉरी, इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड ब्रदर. इंग्लिश ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरे दुनिया में बोला जाता है. वेदर यू लाइक इट और नॉट, इफ यू लर्न इंग्लिश देन यू कैन लिव अक्रॉस एनीवेयर इन द वर्ल्ड. जनाब, हाँ, तो आप अगर हिंदी सीख के अगर आप अमेरिका जाओगे, कैसे वहां पे जी पाओगे आप? ये बताओ मुझे. हिंदी सीख के कल आप नौकरी के लिए अगर इंग्लैंड चले गए, वहां क्या करोगे फिर आप? आपके लिए लैंग्वेज एक बैरियर बन जाता है. इसीलिए अंग्रेजी माध्यम भी एक चीज होता है जिसको आज इतना बढ़ावा मिलता है पेरेंट्स की तरफ से और हिंदुस्तान के जनता की तरफ से. And we have Rajdeep Sardesai in the room now. So claps for Rajdeep sir. Welcome Rajdeep. Hello sir. Yes. can I answer the question to that Shada gentleman? has a point to make. No. I just want to prove your point to the guy. आपने जो सवाल पूछा था अभी, आप शायद ये नहीं जानते हैं कि भारतीय के जो खिलाड़ी हैं, एथलीट्स हैं, वो सब हिंदी में बात करते हैं और वो झगड़ा नहीं करते हिंदी के ऊपर. ऑटोमेटिकली उनके कॉन्वर्सेशन हो जाता है. दैट इज द लिंक लैंग्वेज इन स्पोर्ट्स. सो डोंट मेक इट कंपल्सरी फॉर एवरीबडी. कंपल्सरी मत करो. मोमेंट कंपल्सरी कहते हो हम नहीं करने वाले. राजनीतिक लोग राजनीति करते हैं हिंदी भाषा के ऊपर. वो आपको नहीं समझ में आ रहा. बिल्कुल साफ बोल रहे हैं, आपको नहीं समझ में आया जो कह रहे हैं.
All right. We'll- Thank you so much for this conversation. Thank you. I think Cyrus wants No, I just want to know, Cyrus has a point. ये जो है जिसने प्रश्न पूछा अभी, is he from Telangana? But if he's not from Telangana, why are we wasting our time answering? I have no idea. By the way, Cyrus, I'm a big fan of you. Now you're scaring me, No, sir. no, not now. पर हिंदी में बोलना पड़ेगा. I'm kidding. साइरस, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ. आज नहीं जब आप मलाइका के साथ शो करते थे 90s में, तब से बहुत बड़ा फैन हूँ. Thank you. Sir, one question. All right, fantastic. Unfortunately, Thank we're you. Sir, out one of question. time. No, thank you. We'll keep the conversation right off the stage. But Mr. Kedia, thank you so much. Maria, wonderful moderating. If you can just stay back, I want to invite the general manager of Clarks, Mr. Vijay. Please come on board. I just say a few words. Reddy garu, thank you so much. Chala bagundi. Thank you. Thank you, Mr. Ketia. I appreciate it. Yeah. All right, we're moving to another very interesting session, and this is on cricket commentary, and boy, is this going to be a fun panel. Mainly because Cyrus is going to be coming on board. He's India's original funny man. He's a comedian. He's a TV anchor, theater actor, and a podcaster. Okay, we're going to settle down. We're going to settle down. All right. We're going to give ourselves a 30-second break.